Hello everyone, welcome to Creative Maths with Deepti ma'am. Today our chapter is Lines and Angles Part 1. Now every concept on your tips. So the topics to be covered in this lesson are supplementary angles, complementary angles, adjacent angles, linear pair of angles, vertically opposite angles, intersecting lines, parallel lines, transversal angles made by transversals that are corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, consecutive angles, and transversal of parallel lines. Let's start with the introduction. जैसे कि इस चैप्टर का नेम है Lines and Angles. So in this chapter we will study about some pair of lines and angles. But first of all we will just recall some topics which you have already learned in your previous class. That is line. Now what is line? Line is a one-dimensional figure which extend infinitely from both the sides. That means दोनों साइड से ये endlessly क्या होती है? Extend होती है. It does not have any end point. Now next is ray. Now what is ray? ray क्या होती है? ray is also a one dimensional figure which has one end point and it extend endlessly from other direction. That means एक point से तो वो start होती है लेकिन दूसरी sides वो endlessly क्या होती है? increase होती जाती है. That means इसकी भी कोई definite length नहीं होती है. Now next is line segment. Now what is line segment? Actually जो line segment होता है, line segment is a part of a line. वो line का ही एक part होता है which have two end points and a definite length. That means कि इसकी जो length होती है वो क्या होती है? Definite होती है. That means इसे हम जो है calculate कर सकते हैं. Now next is angle. Now what is angle? Basically angle is formed when two rays meet or intersect at a point. Suppose हमारे पास ये दो रे हैं. ओके अब ये दो रे जो हैं वो यहाँ पर एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं एक दूसरे को. सो नाउ दिस फिगर इज फॉर्म्ड. इट इज कॉल्ड एन एंगल. Now let's talk about the types of angles. We have some types of angles. Number first is acute angle. Now what is acute angle? An angle whose measurement is less than 90 degree is called acute angle. Now second is obtuse angle. Now what is obtuse angle? An angle whose measurement is greater than 90 degree is called an obtuse angle. Now next third is a right angle. Now what is right angle? Whose measurement is equal to 90 degree. Now next is straight angle. Now what is a straight angle? Whose measurement is equal to 180 degree. That means जिसकी measurement 180 होती है that is the straight angle. जैसे कि इसका name है straight, so it makes a straight line of two opposite rays. एक हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है तब हमारा स्ट्रेट एंगल बनता है. नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. Now what is reflex angle? An angle whose measurement is greater than 180 degree and less than 360 degrees called the reflex angle. Now last is a complete angle. Now जैसे इसका नेम है a complete angle, that means कि ये एंगल पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है और इसकी मेजरमेंट कितनी होती है? 360 डिग्री. दैट मीन्स सपोज एक रे है, इसने अपना
रोटेशन स्टार्ट किया, रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये वापस अपने प्लेस पर आ गई है, तो दैट मीन्स कि इसने 360 डिग्री एंगल अपना कंप्लीट कर लिया है. Now our first topic is supplementary angles. Now what are supplementary angles? That is the two angles whose sum is 180 degree is called a supplementary angles. That means कि वो दो angles जिनका sum कितना होता है 180 degree, that angles are called the supplementary angles. For example, just look at an angle here. Suppose we have this angle that is 120 degree and the another angle whose measurement is 60 डिग्री. अब हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स हैं, अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं दैट मीन्स 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, सो द एडिशन वी विल गेट दैट विल बी 180 डिग्री. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दीज टू एंगल्स are called the supplementary angles. And one more things, together they are called supplementary. मतलब अगर वो एक साथ हैं तो वो supplementary angles हो गए, but अगर हम individually बात करें तो they are called the supplement of each other. That means कि ये जो angle है वो इसका supplement होगा and this angle is called the supplement of this angle. दोनों एक दूसरे का क्या कहलाते हैं? supplement कहलाते हैं. Okay, now let's take one more example. Suppose we have two right angles. That means हमारे पास ये दो right angles हैं, that is whose measurement is 90 degree. Okay, so अगर हम इन दोनों angles को add करते हैं that means 90 plus 90, so we will get 180 degree. So it means two right angles are also supplementary angles. क्यों? क्योंकि उनका सम भी कितना होता है 180 डिग्री. सो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है that name two equal angles that are supplementary. That means कि वो equal angles जो equal तो है ही, साथ में क्या है supplementary भी हैं, तो वो दो angles कौन से होंगे? वो होंगे दो right angles because they are equal as well as they are supplementary also because उनका sum कितना होता है 180 degree. Now let's talk about the complementary angles. Means कि complementary angles कौन से होते हैं? That two angles whose sum is 90 degree, that angles are called the complementary angles. That means two angles whose sum is 90 degree. वो दो angles जिनका sum कितना होता है 90 degree, they are called complementary angles. For example, suppose हमारे पास यहाँ पे दो angles हैं, one angle is of measurement 60 degree and the other angle of measurement 30 डिग्री. सो अगर यहाँ हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं दैट मीन्स 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो दोनों का एडिशन कितना होगा? द एडिशन विल बी 90 डिग्री. सो इट मीन्स दीज टू एंगल्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो साथ में तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो दे आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. दैट मीन्स दिस एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल. Okay, now let's take one more example. Suppose we have two angles, two acute angles, that is 45 degree and other one of the same measure that is 45 डिग्री. तो हमारे पास यहाँ पर दो एक्यूट एंगल्स हैं 45 डिग्री के. तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं दैट मीन्स 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री. सो व्हाट विल बी द एडिशन? द एडिशन विल बी 90 डिग्री. सो इट मीन्स that two acute angles, these two acute angles are complementary angles. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि name that two equal angles which are complementary. That means कि वो दो angles जो equal भी हो
और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो, तो वो दो एंगल्स कौन से होंगे, वो होंगे दीज टू एक्यूट एंगल्स ऑफ 45 डिग्री मेजरमेंट्स के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडजेसेंट एंगल्स कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग इट हमें एडजेसेंट का मीनिंग पता होना चाहिए कि एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? मीन्स थिंग्स नेक्स्ट टू अदर। दैट मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट या एक कोई भी थिंग है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के क्या है, जस्ट नेक्स्ट है, उसके बराबर में है, तो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के जस्ट बराबर में होते हैं तो दैट मीन्स कि वो दोनों क्या है, एडजेसेंट है। सो जैसे यहाँ पर है एडजेसेंट एंगल्स, तो इट मीन्स कि ये जो एंगल्स होंगे दोनों, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट बराबर में होंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। So just first come to the definition of the adjacent angle. Now the adjacent angles are those angles which have one common vertex. That means दोनों का vertex क्या होना चाहिए, common, यानी कि same होना चाहिए. Now second point, they have one common arm. That means कि दोनों में एक arm क्या होनी चाहिए, common होनी चाहिए. Now third point. Now third point is this, that uncommon arms lying on the both sides of the common arms. Uncommon arms lying on both sides of common आर्म। दैट मीन्स कि जो बाकी की दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो उस कॉमन आर्म्स के क्या होंगी, बोथ द साइड्स होंगी, अलग अलग साइड्स होंगी। ओके, फॉर दिस इसको हम एक फिगर बनाते हैं। ओके, एक फिगर की हेल्प से हम इसको ईजिली समझते हैं दैट व्हाट आर द एडजेसेंट एंगल्स। सो जस्ट लुक एट अ फिगर हेयर। सपोज यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम इसकी एक लेबलिंग करते हैं। सपोज यहाँ पर जो इनका एक वर्टेक्स है वो ए है, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, नाउ लुक एट हेयर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस एंगल नेम एज 1 and this angle is angle 2. Okay, now the angle 1 that is AOB and the angle 2 which is एंगल BOC। अगर आप इन दोनों एंगल्स में देखें तो दोनों एंगल्स का जो वर्टेक्स है वो क्या है, सेम है। दोनों का वर्टेक्स सेम है। क्या, कौन सा है वर्टेक्स है, O। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो हो गया कंप्लीट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि दोनों में एक आर्म क्या होनी चाहिए, कॉमन। तो अगर आप देखें कि ये वाली जो आर्म है OB वो इस एंगल में भी है, AOB ये इस एंगल की भी आर्म है, और एंगल BOC दैट मीन्स ये सेकेंड एंगल ये इस एंगल की भी आर्म है। दैट मीन्स कि एक आर्म OB जो है वो दोनों एंगल्स में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं दैट इज OA एंड OC, ये जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म्स के क्या हैं, बोथ साइड्स हैं। दैट मीन्स कि एक लेफ्ट साइड है इस कॉमन आर्म के और एक राइट साइड है, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स में लाई करेंगी। ओके, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर इन दोनों एंगल्स ने इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर दिया है, फुलफिल कर दिया है। तो दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर द एडजेसेंट एंगल्स। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हेयर कि जो ये थर्ड पॉइंट है कि अनकॉमन आर्म्स जो होती हैं वो अपोजिट साइड पे लाई करती हैं, वो भी होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस कि दोनों एंगल्स में कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होता। जैसे अगर आप एंगल 1 को देखें तो एंगल 1 के जो इंटीरियर पॉइंट होंगे वो इस एरिया में लाई करेंगे, और एंगल 2 के जो इंटीरियर पॉइंट होंगे वो इस एरिया में लाई करेंगे। दैट मीन्स कि दोनों के जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो कहीं पर भी कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। दोनों के इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। Okay, so basically the adjacent angles are those angles which have the common vertex, one common arm, and the non-common arms are lying opposite, both opposite sides of this
common arm, that is the adjacent angles. Now our next topic is linear pair of angles. To understand these angles, just look at our arrangement here. यहाँ पर आपको दो angles दिख रहे हैं. That means कि यहाँ पर इस angle को हम denote कर सकते हैं. That is angle 1 and we can say this is angle 2. तो आपको यहाँ पे easily ये पता चल रहा है कि angle 1 and angle 2 both angles are the adjacent angles. ठीक है. आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स के बारे में क्यों बात कर रही हूँ. सॉरी, एक्चुअली बेसिकली जो लीनियर पेयर होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं. सो जस्ट look at the arrangement here. These two angles are the adjacent angles. Why they are adjacent? Because यहाँ पर दोनों angles, angle 1 और angle 2, दोनों angles का जो vertex है वो same है. क्या है? O है. दोनों angles में एक arm, ये arm क्या है? कॉमन है. एंड जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म्स के क्या है? अपोजिट हैं. एक लेफ्ट में है और एक राइट में है. सो दैट्स व्हाई दीज एंगल्स आर द एडजेसेंट एंगल्स. ओके, नाउ अब मैं अगर इसकी जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये जो आप दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अगर मैं इसे रोटेट करूं और रोटेट करने के बाद मैं एक यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, स्ट्रेट लाइन ऑफ टू अपोजिट रेज. दैट मीन्स यहाँ पर आपकी जो दो नॉन कॉमन आर्म्स थी वो अब क्या बन गई हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना दी है टू अपोजिट रेज की. एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है. ठीक है. तो नाउ इन दिस कंडीशन दीज एडजेसेंट एंगल्स are called the linear pair of angles. So what does it mean? It means two adjacent angles in which non-common arms are two opposite rays. That adjacent angles are called the linear pair. तो basically linear pair जो होते हैं वो adjacent angles ही होते हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दो अपोजिट रेज बन जाती हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना देती हैं. सो इसलिए इसका नेम चेंज हो जाता है लीनियर पेयर. जैसे इसका नेम है लीनियर पेयर, सो लीनियर मीन्स अ स्ट्रेट एंड पेयर मीन्स टू एंगल्स. तो वो दो एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ऐड होकर, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पेयर. ओके, नाउ वन थिंग इज दिस, बिकॉज ये दोनों एंगल्स ऐड होकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, और एज यू नो कि एक स्ट्रेट लाइन कितने मेजरमेंट की होती है? 180 डिग्री की. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री. सो हेयर दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, नाउ इफ वी डू द comparison, if we find the difference between the adjacent angle and linear pair, अगर हम उन दोनों को compare करें, so for the comparison I am just making an adjacent angles here. ठीक है. मैंने यहाँ पर एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया. सपोज दिस इज ए, ओ, ये बी पॉइंट एंड ये सी पॉइंट. तो अगर आप एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, सो एज यू कैन सी कि दो यहाँ एडजेसेंट एंगल्स में भी वर्टेक्स क्या है? सेम है दोनों का. दैट इज अगर ये एंगल 3 एंड ये एंगल 4, दोनों का वर्टेक्स क्या है? सेम है, ओ है. यहाँ भी लीनियर पेयर में दोनों का वर्टेक्स क्या है? सेम है, ओ है. ओके, इन दोनों एंगल्स पे वन आर्म क्या है? कॉमन है. इन दोनों एंगल्स में भी वन आर्म क्या है? कॉमन है. सॉरी. ओके, एडजेसेंट एंगल्स में नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो इस कॉमन आर्म्स के क्या है? अपोजिट है. लीनियर पेयर में भी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म्स के क्या है? अपोजिट हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में. बट सारी कंडीशंस यहाँ पे सिमिलर हो गई. बट द मेन थिंग इज दिस कि लीनियर पेयर में नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं. ओके, टू अपोजिट रेज की. बट इन एडजेसेंट एंगल दिस थिंग इज नॉट हैपन. एडजेसेंट एंगल्स में ऐसा नहीं होता है. सो इन सिंपल वे वी कैन से कि लीनियर पेयर जो है वो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं. दैट मीन्स कि एवरी लीनियर पेयर इज एन एडजेसेंट एंगल. बट क्योंकि एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते हैं, दैट्स वाई एवरी एडजेसेंट एंगल इज
नॉट अ लीनियर पेयर। एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में कि दे विल आस्क यू दैट एवरी लीनियर पेयर इज एन एडजेसेंट एंगल। यस, हर एक लीनियर पेयर एक एडजेसेंट एंगल होता है, बट हर एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर नहीं होते हैं। Now our next topic is angles on a straight line. That means कि यहाँ हम उन एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं. For this, just look at a figure here. There are we have 5 angles: angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 and angle 5. Okay, now if we add all these angles, अगर हम इन सभी angles को add करते हैं तो after the addition we get a straight line. That means इन सभी का जो addition होगा उसके बाद हमें एक straight line मिलेगी. And as we know, एक straight line जो होती है उसकी measurement कितनी होती है? 180 degree. So what does it mean? It means that the angle which form on a straight line from a point, these angles are called a straight line angles, and the sum of all these angles is 180 degree. Now that means here the angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, because हमने इन सभी एंगल को जब ऐड किया तो ऐड करने के बाद यहाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, तो इसलिए इन सभी का एडिशन जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री. तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब कोई भी एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं एक ही पॉइंट से, कंडीशन ये है कि सारे एंगल एक ही पॉइंट से बनने चाहिए, तो उन सभी एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री. नाउ क्योंकि हमने लीनियर पेयर के बारे में स्टडी किया, तो लीनियर पेयर में भी दोनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री. बट हेयर वहाँ लीनियर पेयर जो होते हैं, लीनियर पेयर मीन्स 2 एंगल्स. ओके, तो वहाँ जब एंगल्स जब स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स बनते हैं तब वो कहलाते हैं लीनियर पेयर. बट जब स्ट्रेट लाइन पर मोर देन 2 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 2 से ज़्यादा एंगल्स, अब वो कितने भी हो सकते हैं 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो कंडीशन ये 2 से ज़्यादा होने चाहिए. तो जब 2 से ज़्यादा कितने भी एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट से, तो उन सभी का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री. एंड दीज एंगल्स आर कॉल्ड एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं. Now angles around a point, that means यहाँ हम उन एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक पॉइंट के अराउंड बनते हैं. फॉर दिस जस्ट लुक एट अ फिगर हेयर. इन दिस फिगर वी हैव अ पॉइंट हेयर, दैट इज पॉइंट O. अब आप देखिए इस यहाँ पे इस पॉइंट के अराउंड ये सभी एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, दैट इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5. ये टोटल जितने भी एंगल्स हैं, 5 एंगल्स हैं, वो एक पॉइंट के अराउंड बन रहे हैं. ओके, अगर हम इन एंगल्स को ऐड करें, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो जब हम इन सभी एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमें एक पूरा यहाँ पर एक कंप्लीट राउंड मिलता है. एंड वी नो दैट व्हेन ए रे, एनी रे डू अ राउंड, एक कंप्लीट राउंड, अपना एक राउंड कंप्लीट करती है, जब कोई रे अपना एक राउंड पूरा कंप्लीट करती है तो दैट मीन्स वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का. सो इट मीन्स यहाँ पर भी पूरा एक कंप्लीट राउंड बन रहा है इन सभी को ऐड करके. सो दैट मीन्स कि इन सभी एंगल्स का एडिशन कितना होगा? 360 डिग्री. सो इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is equal to how much? Equal to 360 degree. So that means the sum of all the angles around a point is 360 degree. एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, तो जितने भी एंगल्स एक पॉइंट के अराउंड बनते हैं उन सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री.
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो जैसे कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है, दे आर इंटरसेक्टिंग, सो इट मीन्स व्हेन टू लाइन्स intersect each other at a point, then that these lines are called the intersecting lines. So just look at here, यहाँ ये दो लाइन्स हैं जो एक दूसरे को यहाँ पर एक पॉइंट ओ पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो दैट मीन्स कि यहाँ ये जो पॉइंट ओ है वो दोनों लाइंस में क्या है, कॉमन है। दैट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन में भी है और ये पॉइंट ये सेकेंड लाइन में भी आ रहा है। तो दैट मीन्स व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए point, then these lines are called the intersecting lines, and intersecting lines have one common point. दोनों में एक point क्या होता है, common होता है। Okay, now if we talk about the perpendicular lines, आपने परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ हम एक परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। these two lines, that is O, suppose this is A and this is B, these two lines, that is OA and OB, these two lines are perpendicular to each other, that means दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। now because these two lines have a one कॉमन पॉइंट हेयर, दोनों में एक पॉइंट क्या है, यहाँ पर कॉमन है। सो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दीज परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों भी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, क्योंकि दोनों यहाँ एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं, और दोनों में ये पॉइंट क्या है, कॉमन भी है। सो परपेंडिकुलर लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. Now we have so many examples of intersecting lines in our life. Just look at a door here. Okay, now these two adjacent sides of the door की जो ये दोनों adjacent sides हैं, they are perpendicular to each other. ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे पर perpendicular हैं, that means they are intersecting lines. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द विंडो, इन विंडो में भी क्या होता है, जो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, दैट मीन्स कि ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वॉल, तो वॉल की भी जो एडजेसेंट एजेस होती हैं, साइड्स होती हैं, वो भी एक दूसरे पर क्या होती हैं, वो भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, दैट मीन्स कि वो दोनों भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे रियल लाइफ में, जैसे कि अगर हम सीजर की बात करें तो सबको पता है सीजर की जो दो एजेस होती हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सो वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग लाइंस in our life.